Hello everyone, welcome to Economy Show. Today ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। କ'ଣ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ, ତାପରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ, ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ତ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ଓକେ, ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ କ୍ଲାସ୍ର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ସେଇଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ, ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଓକେ, ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭାରତକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ସଂଘୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ, ଐକିକ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଥାନ୍ତି। ତ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପାୱାରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା ହୋଇଥାଏ। ପାୱାର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ, କ୍ଷମତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହୋଇଥାଏ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ଷମତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଲା, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାୱାରର ବା କ୍ଷମତାର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି ମନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିସି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିସି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ନମନୀୟ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତ ଆଇନ କାନୁନ ଯାହା ବି ସମ୍ବିଧାନର ରହିଛି ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେମିତି କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ। ଓକେ,
ଆଉ ନମନୀୟ ଆଉ ଅନମନୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ନମନୀୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଇଜିଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ନମନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଟିକେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ରହିଥାଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆଉ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ମାନେ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆଉ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ଏହି ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠିକି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ? ତମର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କାଣା ବୁଝୁଛ? ଦେଖ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସଂଘୀୟ କଥା ଉଠେ ନା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଥାଏ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନର ମନେକର ପାୱାର କଥା କୁହାଯାଉ, ପାୱାର ବା କ୍ଷମତା। ସମ୍ବିଧାନର କ୍ଷମତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲ ତିଆରି କରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ବିଷୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ସମ୍ବିଧାନରେ ପାୱାରଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କ'ଣ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଐକିକ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାକୁ କହୁଛ। ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଐକିକରେ ଯେତେ ବି ପାୱାର ରହିଛି ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ସମସ୍ତ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପାୱାର ଥାଏ। ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନଥାଏ, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଓକେ, ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କ'ଣ ହେବ? ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଓକେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓକେ, ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାଣା କାଣା ରହିଛି? ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ମାନେ ଦୁଇଟା ସ୍ତରରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ଆଉ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ଆମ ଭାରତର। ତ ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଦୁଇଟି ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତହିଁରେ ସମାଧାନ ଓ ତର୍ଜମା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦରକାର। ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଉପରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଓକେ, ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବଡ଼ିଟେ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ,
तापर आसला दुई सदनीय व्यवस्था जो गोटे सदन प्रांतीय सरकार स्वार्थ निमित्त उद्दिष्ट तापर है दुईटा सदन रहा दरकार लोकसभा और राज्यसभा दुईटी सदन थी दरकार एटा हे संघीय व्यवस्थार लक्षण बा वैशिष्ट्य जहाँ को कही बुझिपार कौन कौन वैशिष्ट्य रहा दुई स्तरीय सरकार फास्ट है सेकेंड लिखित और अनम्य संविधान माध्यम क्षमतार डिस्ट्रीब्यूशन बा जहाँ को बंटन बोली कहूँ दुई गला तब 3 नंबर आम कौन कहलु जदि राज्य आउ केंद्र सरकार मध्य कौन जदि समस्या सृष्टि है तार समाधान पाई गोटे स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय आवश्यकता रहा तापर चतुर्थ कौन रहा कि दुई सदनीय व्यवस्था रोचे जोटार कि गोटे सदन प्रांतीय सरकार स्वार्थ रक्षा निमंते उद्दिष्ट रही ओके बुझिपार तापर एबे जानिबा कौन संविधान रो जो धारा 1 टा कौन कहूँ आमर जो संविधान रे आर्टिकल 1 रही धारा 1 रही सी कौन कहे सेटा आम जानिबा ओके भारतीय संविधान रे एक भारत को एक संघीय किंबा ऐकिक राष्ट्र रूपे वर्णना करे नहीं कारण कहला भारतर संविधान भारत को एक संघीय किंबा ऐकिक राष्ट्र रूपे वर्णना करे नहीं आम संविधान रो धारा 1 कौन कहे आम संविधान रो धारा 1 कहे जे भारत जहाँकि राज्य मानकर एक समष्टि अटे बोली कहला कौन आर्टिकल 1 कहला कौन भारत जोटा कि राज्य मानकर कौन समष्टि बोली कहा जाए ओके एटिके निहाती मन रखिबो आर्टिकल 1 वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके एथिरे उभय संघीय और ऐकिक राष्ट्र उपादान मिश्रित रही बोथ संघीय और ऐकिक राष्ट्र उपादानटा मिश्रित हो रही भारत राज्य मानक एक समष्टि यह मुख्यतः दुईटी कारण प्राधान्यता को देख भारत राज्य मानकर गोटे समष्टि यह दुईटी कारण प्राधान्यता लाभ करथाय कौन प्रथम कारण होचे कि भारतीय संघीय व्यवस्था राज्य मानक चुक्ति सृष्टि नुहे कौन कहला भारतीय संघीय व्यवस्था राज्य मानक चुक्ति सृष्टि नुहे भारत रे जो राज्य संघीय व्यवस्था रही सेटा राज्य मानक चुक्ति सृष्टि नुहे माने राज्य मानक जो चुक्ति रही से आमर संघीय व्यवस्था सृष्टि है नहीं बोली कहा जाए सेकेंड रे काना कहला ना राज्य माने कौनसी समय रे उक्त सम्मिलनी रु अलगा होई पारिबे नहीं जदि भारतर जो राज्य माने रहिले भारत ठारू से माने अलगा हो पारिबे नहीं तेणु भारत को कौन कहा जाए राज्य मानक एक स्थायी और अखंड सम्मिलन अटे जदि कौन स्टेट जदि सेपरेट होगा लगू चाहिए भारत रु अलगा होगा चाहिए ताले से अलगा हो पारिबो नहीं ओके ये सब आर्टिकल 3 रे दिया जाइए मेंशन करा जाइए सब विषय रे ओके बुझिपारला धारा 1 कौन कहगला सेटा निहाती जानिबो ओके जो जोटा मेन पॉइंट ना सेटा तुम मन को मु कहूची जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ओके जोटा कि केवल जे तुमर +2 एग्जाम रे आसीबो सेमती नाही सेटा बहुत आगो को मध्य काम देबो जेते बेले कॉम्पिटिटिव लाइन के मध्य जीवो सबुथिरे क्वेश्चन जोटा तुम जानिछ +2 रे जोटा पढ़ाउची सेटा निहाती काम आसीबो तेणु जोटा इंपोर्टेंट सेटा टिके भलो भाबरे ध्यान से टिके देखिबा को पड़िबो ओके तापर से आसिला कौन जे भारत गोटे संघीय राष्ट्र ना अर्ध संघीय राष्ट्र केते जण राजनैतिज्ञ माने कहती जे भारत गोटे संघीय राष्ट्र आउ केते जण कहती भारत गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहती तो सेमानक भितर कौन हुए ना गोटे डिबेटटा चली थाए भारत गोटे संघीय राष्ट्र ना अर्ध संघीय राष्ट्र केते कारण जदि आम देखा भारत गोटे संघीय राष्ट्र बोली कहबा आउ किछि कारण रही जोटा कि भारत गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कही थांती से परि जणे विशिष्ट
राजनैतिज्ञ जहाँ आम कौन कहू केसी होयर के जार नाम कौन के सी होयर पिले एटा टिके मने रखिबरी केसी होयर ए जिनिसटा तुम जदि मने न रखिब तुम बहुत प्रोब्लेम फेस कर एटा तुमरो नॉट ओनली +2 एग्जाम बट ऑल्सो ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे क्वेश्चन टा आसुची बुझी पारछो। तो केसी होयर से कहिथिले जे भारत गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र भारत कौन भारत गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहिथिले भारत को से कौन कहिथिले गोटे अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहिथिले संघीय राष्ट्र बोली कहा जायथिले ओके भारत को अर्ध संघीय राष्ट्र बोली किए कहिथिले केसी होयर कहिथिले बुझी पारलो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तापरे भारतीय संविधान संघीय उपादान भारतीय संविधान रे जो संघीय उपादान मन रही सेटा कौन कौन रही प्रथम उपादान कौन रही द्वैत सरकार भारत रे द्वैत सरकार प्रचलित होते हैं आम जानी आमर भारत रे दुई प्रकार सरकार चाहे डबल गवर्नमेंट चलसी बुझीपार डबल गवर्नमेंट मान जानी तो स्टेट लेवल रे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल रे सेंट्रल गवर्नमेंट ओके। तो भारत रे द्वैत सरकार व्यवस्था प्रचलित होते प्रत्येक नागरिक दुईटी सरकार अधीन रे यथा राज्य सरकार जोटी से बास करे और भारत सरकार ओके आमे उभय सरकार निर्वाचन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करूँ और उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन मानी था जेहेतु आमर गोटे भारत रे द्वैत सरकार प्रचलित तेणु आमे समस्ते भारत सरकार रो आईन मानी था और राज्य सरकार आमे आईनटा बा नियमटा जोटा अच्छे आमे मानी था आमे बहुत राज्य सरकार आउ केंद्र सरकार निर्वाचन रे आमे अंशग्रहणटा करि थाउ ओके आमे मध्य उभय सरकार को कर प्रदान करि थाउ कर माने जानिछो टैक्स जोटा कि सेंट्रल लेवल जोटा जो कि सीजीएसटी बोली कह जाए सेंट्रल लेवल जो टैक्सटा दि जाए जान सेंट्रल लेवल जो टैक्स दि जाए सीजीएसटी बोली कह जाए सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स और स्टेट लेवल जो टैक्सटा दि जाए एसजीएसटी बोली कह जाए पिले एटा तुम ए तुम कौन धारणा नथिबो किंतु एटा जेतेबेले तुम आग को पड़ो ना से तुम निहाती जान सीजीएसटी काଣା एसजीएसटी काଣା एटा बुझी पारलो। तापर आसला पॉइंट नंबर 2 रे काଣା कहछि केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मध्य क्षमता बंटन आ गोटे इन गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहूँ तुम मन को टिके भलसे मन रखब केंद्र सरकार क्षमतार जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बा ओडिया जो क्षमतार क्षमता बंटन बोली कह नहीं कि क्षमता बंटन ओके क्षमतार बंटन एटा कौ अनुसूची रे दिया जायछि अनुसूची एटा भी निहाती जानिबो क्षमता बंटन कौ अनुसूची रे रही आम संविधान रो कौ अनुसूची रे शेड्यूल नंबर कौन एटा निहाती जानबो शेड्यूल नंबर 7 सप्तम अनुसूची रे दिया जायछि शेड्यूल नंबर 7 रे बुझी पारछो तो एटा निहाती मन रख शेड्यूल नंबर 7 अनुसूची सप्तम रे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बा क्षमतार बंटन विषय दिया जायछि पिले बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख क्षमता राज्य केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन आमर रही अनुसूची सप्तम रे दिया जायछि ओके। तो भारतीय संविधान उभय केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमतार विभाजन करिछि समस्त क्षमता मुख्यतः 3 भाग रे विभक्त रही देख ए जगह मन टिकी रख आमर क्षमता जो रहिला क्षमता को आमे 3 भाग रे विभक्त करिछि कौन कौन रही क्षमता कौन कौन रही देख एक हला केंद्र तालिका रही
क्षमता डिस्ट्रीब्यूशन आम केंद्र तालिका आसवा तापर आसला कौन राज्य तालिका तापर आसला केंद्र तालिका राज्य तालिका आ गोटे हला जुग्म तालिका केतरा क्षमता केतरे भाग विभक्त कर मुख्यतः 3 भाग विभक्त कर क्षमता को मुख्यतः आम केते भाग विभक्त करें 3 भाग कौन कौन गोटे हला केंद्र तालिका आ गोटे हला राज्य तालिका आ गोटे हला जुग्म तालिका बुझी पारल मन रख केंद्र तालिका जुग्म तालिका आउ राज्य तालिका आम क्षमता को 3 भाग विभक्त करिछे ओके। तो केंद्र तालिका रे आम जो विषय रही आमर 100टी विषय रही मन रख केंद्र तालिका रे केतोटी विषय रही 100टी विषय रही केतोटी विषय रही 100टी विषय रही ओके। तापर राज्य तालिका को जदि आम देखिबा राज्य तालिका रे केतोटी विषय रही राज्य तालिका रे आमर 61 कि 62टी दि जाए गोटे गोटे बही में 62 दिखाई गोटे गोटे बही में 61 दिखाई तो 61 कि 62टा जोटा कि क्वेश्चन तुमको जमती दि जाइए तार आंसर सेमती कर राज्य तालिका रे केते विषय रही आमर 61टा प्रायतः रही थाए ओके। राज्य तालिका रे केते विभक्त रही 61टी विषय रही वर्तमान समय 61टी विषय रही ओके। तापर जुग्म तालिका रहा जो जुग्म तालिका रे आमर केतोटी विषय रहा जुग्म तालिका रे पिले 52टी विषय रही जुग्म तालिका रे केतोटी विषय रहा 52टी विषय रहा जुग्म तालिका रे जुग्म तालिका रे केतोटी विषय रहा 52टी आहरी तुमको टिके भल भाव रे लिखि दउछि टिके मन रख। प्रथमे आसे केंद्र तालिका केंद्र तालिका रहा जोटा कि तुम रही 100टी विषय रही केते विषय रही 100टी विषय। सेकेंड रे रहा तुम राज्य तालिका रहा जोटी कि तुम वर्तमान समय जो देखो 61टी विषय रही तुम राज्य तालिका रे आउ 3 रे जो देख 3 नंबर रे तुम आसला जुग्म तालिका कौन जुग्म तालिका रे 52टी विषय रही ओके। जुग्म तालिका रे केतेटी विषय रही 52टी विषय रही प्ले रे एटे 3टा जाक मन रखिबो केंद्र क्षमता जो आम विभाजन करूछु क्षमतार ताको आम 3 भाग विभक्त करिछि गोटे होछि राज्य तालिका गोटे होछि केंद्र तालिका आ गोटे होछि जुग्म तालिका। केंद्र तालिका रे केतेटी विषय थाए रे 100टी विषय थाए आ राज्य तालिका रे केतेटी विषय थाए 61टी विषय थाए आ जुग्म तालिका रे तमर रही 52टी विषय रही। तो ए जो विषयटा केतेटी रही सेटा मध्ये वेरी इंपोर्टेंट तमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु ओके एतकी जानिलो। तापर आसला आम तो क्षमता को बांटी देलु केंद्र सरकार और राज्य सरकार भितर किंतु एमती किसी अवशिष्ट क्षमता रही एमती किसी क्षमता रही जोटा कि केंद्र सरकार को अधीन रे भी आसे नहीं कि राज्य सरकार को अधीन रे मध्य आसे नहीं तो सेटा को आम कौन कहतु अवशिष्ट क्षमता गुड़िक केंद्र सरकार को न्यस्त करा जाइछि ओके बुझी पारलो। आमे देखो आमर पावर को क्या भितर डिस्ट्रीब्यूशन करछु केंद्र सरकार को मध्य रे आउट हला राज्य सरकार को मध्य एमती किछि विषय रही जोटा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधीन रे आसे नहीं तो जो विषय गुड़िक केंद्र सरकार किंबा राज्य सरकार को विषय आसे नहीं अधीन रे आसे नहीं तो सही विषय रे किए आईनटा प्रणयन करथाय किए आईन प्रणयन करथांती केंद्र सरकार करथांती तो अवशिष्ट क्षमतार अधिकारी किए केंद्र सरकार अवशिष्ट क्षमता गुड़ी को क्या उपरे न्यस्त रही है अवशिष्ट क्षमतार अधिकार केंद्र सरकार को उपरे न्यस्त थाए अवशिष्ट क्षमता गुड़ी को केंद्र सरकार को न्यस्त करा जाइछे प्लीज मन रख अवशिष्ट क्षमतार अधिकार किए आमर केंद्र सरकार ओके। केंद्र तालिका विषय रे केंद्र सरकार आईन प्रणयन करेंगे राज्य तालिका विषय रे राज्य सरकार प्रणयन करेंगे और जुग्म तालिका रे कौन हुए जुग्म तालिका रे उभय
केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही आईन प्रणयन करिथांती ओके किंतु अवशिष्ट क्षमता गुड़िक जो रहा जोटा अवशिष्ट क्षमता जोटा केंद्र सरकार किंबा राज्य सरकार विषय आसे नहीं सही गुड़िक उपरे किए करती केंद्र सरकार कही थांती ओके केंद्र सरकार करी थांती गोटे इन गोटे विषय आसी जमती तुमको दिगला कि शिक्षा मनकर एजुकेशन भी गला एजुकेशन कौ लिस्ट रे अच्छे सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट ना कोहेरेंट लिस्ट बा जुग्म तालिका ना राज्य तालिका ना केंद्र तालिका कौ तालिका आसे वर्तमान समय जदि देखिब शिक्षा गोटे एमती विषय जोटा कि जुग्म तालिका आसुछि जुग्म तालिका अच्छे किंतु पूर्वर कौन थिला ना शिक्षा गोटे केंद्र सॉरी राज्य तालिका थिला ओके आगरू कौन थिला ना शिक्षा गोटे राज्य तालिकाभुक्त थिला किंतु वर्तमान समय जदि देखिबो सेटा गोटे जुग्म तालिकार अंतर्भुक्त करा जायछि तो एटा गोटे आसे क्वेश्चन आसे एटा भी मध्य आसे शिक्षा कौ तालिका अंतर्भुक्त करा जाय शिक्षा को आमे कौ तालिकार अंतर्भुक्त करा जायछि गोटे कौन हम जुग्म तालिकार मन रख ओके एतकी आमे जानिले कौन कौन जानिले ना क्षमतार डिस्ट्रीब्यूशन जानिले द्वैत सरकार आमे जानिले दुईटा पॉइंट तापरे आसिला कौन लिखित और अनमनीय संविधान लिखित और अनमनीय संविधान भारत रे एक लिखित और अनमनीय संविधान रही जो थे कि निर्दिष्ट भाव में केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन करा जायछि ओके भारतीय संविधान एकादश और द्वादश भागरे केंद्र और राज्य सरकार मध्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्रशासनिक एवं आर्थिक संपर्क रे स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जायछि ओके देखो आमर जो संविधान रहिला ओके संविधान रो एकादश भाग माने XI आउ XII एकादश आउ द्वादश भाग रे कौन रही ना राज्य जो द्विदश सॉरी एकादश और द्वादश रे केंद्र और राज्य मध्य थिबा व्यवस्थापिका संपर्क किंबा प्रशासनिक संपर्क और अर्थनैतिक संपर्क तीनटा रिलेशन विषय रे दिया जाइछे कौ कौ भाग रे एकादश द्वादश ओके एटा होचे आर्टिकल नंबर 245 एंड रु 300 भितरे रही ओके आर्टिकल को विषय रही 245 रु 300 आर्टिकल भितरे रही ओके उभय सरकार संविधान रु क्षमता पाई थांती और संवैधानिक नीति अनुसार निजर कार्य संपादन करथांती संविधान हेउची सर्वोच्च क्षमता और केही एहाकू अवमानना करि परिबे नहीं ओके संविधान होची सबुठारु उच्च ओके कौनसी व्यक्ति जदि संविधान रो विषय न माने माने संविधान को जे अवमानना करी ताकू कठोर दंड रे दंडित करा जाए तो समस्त व्यक्ति संविधान को मानिबा को बाध्य ओके उच्चतम न्यायालय रे संविधान सुरक्षा एवं व्याख्या करबा क्षमता रही कहा पाखे रही सुप्रीम कोर्ट बोली कहा जासी कौन कहा जाए सुप्रीम कोर्ट बा उच्चतम न्यायालय बोली हम कहूँ उच्चतम न्यायालय रे आमर जो संविधान रो सुरक्षा एवं व्याख्या करबा क्षमता रही धारा 368 रे भारतीय संविधान को संशोधन करिबार स्वतंत्र व्यवस्था रही एटा मन रख 368 आर्टिकल 368 ओके 368 आर्टिकल कौन करता है संविधान रो संशोधन कौन संविधान संशोधन कौ धारा अनुसार अच्छे 368 आर्टिकल 368 ओके आर्टिकल 368 वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा निहाती मन रखि दरकार आर्टिकल 368 आमर संविधान संशोधन विषय कहूँ संविधान रो संशोधन विषय को आर्टिकल कहा जाए 368 ओके तापरे आसिला कौन संघीय ढांचा यथा केंद्र राज्य संपर्क संशोधन क्षमतार संवैधानिक अनियमता मध्यती देखो संविधान एमती किसी रही जोटा कि
परिवर्तन करवा संभवपर हुए नहीं। ओके जमती कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ तुम पॉलिटिकल साइंस जिते ग्रेजुएशन करब ना से तुम जापर कोटा बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे आ कोटा कि संशोधन करा जाय पारिबे। ओके ओके तो जो संविधान रे जो बेसिक स्ट्रक्चर मान रहा कि संविधान रो जो बेसिक स्ट्रक्चर रहा बेसिक स्ट्रक्चर ओके तो संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर को आमे 368 आर्टिकल अनुसार संशोधन करि परिबा नाही। ओके जोटा बेसिक स्ट्रक्चर अंडर रे आसे सेटा को आमे संविधान रे संशोधन करि परिबा ना 3 आर्टिकल 368 आर्टिकल प्रोसीजर को नेकी किंतु अन्य किछि विषय रही जोटा कि आमे जोटा बेसिक स्ट्रक्चर अंडर रे आसे नाही तो सही विषय गुड़ को आमे आमे संशोधन करि परिबा। ओके सेटा को आमे कोन करि परिबा संशोधन करि परिबा। संशोधन जनित प्रस्ताव प्रत्येक गृहर संख्याधिक सदस्यंक उपस्थिति और 2/3 सदस्यंक समर्थन जेतेबेले आमर संविधान रे संशोधन कथा उठे संशोधन कथा सेतेबेले कौन हुए संशोधन कथा उठला बेले सेतिरे जो आमर दुईटा सदन रही गोटे लोकसभा आ गोटे है राज्यसभा रही लोकसभा और राज्यसभा रही तो लोकसभा और राज्यसभा रे जदि 2/3 लोक समर्थन करिबे ताहेले संविधान संशोधन करा जाय परिबो। 2/3 लोक माने कोन सपोज पिला माने देखो लोकसभा रे मन कर 100 जन सदस्य रछन 100 जन सदस्य सपोज 100 जन सदस्य अछन सेतिर 2/3 माने 2/3 इंटू 100 माने 66 जदि 100 जन उपस्थित अछंती लोकसभा रे से भितर जदि 66 लोग जदि रेडी हेले कि संविधान को संशोधन करने ताले सेटा एक्सेप्ट हवा से बोली राज्यसभा रे भी जदि 66 लोग समर्थन देले सेटा मध्य एक्सेप्ट हवा तापरे कोन हवा कि संविधान को आमे कोन करबा संशोधन करि परिबा। जदि 2/3 रु कम लोग जदि ताकू भोट देले संशोधन करबा पई ताले सेटा गोटे रिजेक्ट करा जिवो। ओके एटा सब तुमर ग्रेजुएशन पर विषय रे सब अछि जानिबो डिटेल्स रे वर्तमान तुमको बेसिक जिनिसटा कहा जाय। ओके तो संशोधन उभय गृह रे गृहीत संविधान और संशोधन प्रस्ताव अर्धाधिक राज्य विधानसभा स्वीकृति आवश्यकता वास्तविक यह एक कष्टसाध्य और कठोर पद्धति अटे बुझिपार आमर जो संविधान रे संशोधन करवाटा बहुत डिफिकल्ट है कष्टसाध्य और कठोर। ओके से लगी कह जाए आमर संविधान कौन गोटे रिजिड एंड रिजिडिटी रही आम संविधान को कौन कहुच्छी रिजिडिटी कन्स्टिट्यूशन रिजिड कन्स्टिट्यूशन बोली कहुच्छी। ओके रिजिड कन्स्टिट्यूशन बोली कहुच्छी रिटेन एंड रिजिड कन्स्टिट्यूशन बोली कहुच्छी जोटा कि लिखित और अनमन्य संविधान बोली कहुच्छी बुझिपार से लगी तापरे आमे जानिबा 4 नंबर उपादान कौन रही 4 नंबर उपादान रही स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय। भारत संविधान रे एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय व्यवस्था रही उच्चतम न्यायालय यह शीर्ष रही उत्तर आमर जो शासन व्यवस्था रही आमर जो न्यायालय व्यवस्था रही 3 प्रकार न्यायालय रही आमर। ओके केते प्रकार न्यायालय रही 3 प्रकार न्यायालय रही गोटे है सुप्रीम कोर्ट रही जोटा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट मान रही तापर रहा आमर कौन हाईकोर्ट रहा स्टेट लेवल रे हाईकोर्ट सेंट्रल लेवल सुप्रीम कोर्ट तापरे 3 नंबर कौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रही डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी कोर्ट माने रही सबऑर्डिनेट कोर्ट रही एमती रही। ओके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रु विषय गुड़ाक जदि सल्यूशन नहीं पार्चे बोले हाईकोर्ट को जीवा हाईकोर्ट रो जदि सल्यूशन नहीं पार्चे बोले सुप्रीम कोर्ट को जीवे सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर इज द फाइनल ऑर्डर। ओके सुप्रीम कोर्ट जदि कौन विषय रे जदि अनुमति दिए सेटा मानिबा पई पूरा बाध्य होता है सुप्रीम कोर्ट रो अनुमतिटा पूरा गारंटी दिया जाए
ताकू फाइट करने कौन कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट दी हाईएस्ट कोर्ट बोली कहुए बुझिपार केंद्र और राज्य मध्य राज्य मध्य केंद्र राज्य और एकाधिक मध्य होता है तो उच्चतम न्यायालय संविधान जो व्याख्या करती ताहा चूड़ांत ओके सुप्रीम कोर्ट जोटा राय दिए से रायटा पूरा फाइनाल राय बा चूड़ांत निष्पत्ति ताकू बदलबार निष्पत्ति क्या पाखरे ना जदि कौन राज्य सरकार और केंद्र सरकार संविधान नीति को उल्लंघन करी आईन प्रणयन करती तेबे से भली आईन उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक आलोरे नाकच कर दे पारे ओके एटी कि थिला तमरो कौन आमे पढ़िले संघीय व्यवस्थार अर्थ कौन से जानले अकिक व्यवस्था अकिक राष्ट्र कौन संघीय राष्ट्र कौन से जानले तापर संघीय व्यवस्थार लक्षण बा कैरेक्टरिस्टिक बा वैशिष्ट्य जहाँ भी कह सेटा पढ़िले तापर तार संघीय व्यवस्थार उपादान कौन सेटा मध्य आमे जानिले आजिर वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थिला तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे जानिबा संविधान ऐकिक और अर्ध संघीय राष्ट्र कौन तापर केंद्र और राज्य मध्य संपर्क केंद्र जोटा व्यवस्थापिक संपर्क रही तापर प्रशासनिक संपर्क तापर अर्थनैतिक संपर्क से सब विषय आम 1 by 1 डिस्कस करवा ओके आज थी पार्ट 1 वीडियो तो जदि वीडियो इनफॉर्मेटिव बहुत होता है तो आपण मानकर सपोर्ट थी चैनल प्रति आउ नेक्स्ट वीडियो आम आनिबा ओके